السلام علیکم ناظرین، 4 خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام۔ صرف ایک نہیں، 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز۔ ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن، بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امیونٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ کالیشورم کمیشن رپورٹ پر پیر کو کابینہ اجلاس میں ہوگی بحث۔ مجالس مقامی انتخابات اور مانسون اجلاس پر لیا جائے گا فیصلہ۔ کانگریس پارٹی ایک خاندان کی طرح ہے، نئے اور پرانے قائدین میں کوئی فرق نہیں، مہیش کمار گوڑ کا خطاب۔ اولڈ سٹی میٹرو کے کام میں تیزی، رات دیر گئے انہدامی کارروائی، نئے ڈیزائن کے سبب 200 پراپرٹیز محفوظ، ہر دن جائزہ اجلاس۔ بالاپور میں فحاشی کا اڈہ بے نقاب، 5 لڑکیوں کو آزاد کرا لیا گیا، آرگنائزر اور 2 گاہک گرفتار۔ معین آباد فارم ہاؤس پر پولیس کا دھاوا، گانجا، شراب اور ممنوعہ ڈرگز ضبط، 6 IT پروفیشنل حراست میں۔
और चादरघाट पुलिस की मुबैना लापरवाही, एक नौजवान की मौत, रेलवे ट्रैक पर नाश दस्तयाब। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना रियासत का काबीनी इजलास 4 अगस्त को सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। यह इजलास काफ़ी अहमियत का हामिल है। इस इजलास में कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट, मजालिस मुकामी इंतखाबात और असम्बली के मानसून सेशन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा 5, 6 और 7 अगस्त को दिल्ली में BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए मरकज़ पर दबाव डालने के प्रोग्राम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इन सब में अहम कालेश्वरम कमीशन रिपोर्ट पर अहम मुबाहिस होंगे। हुकूमत कमीशन की रिपोर्ट पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेगी। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि हुकूमत अगर रास्त कार्रवाई का फैसला करेगी तो अवाम की नज़र में KCR के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का पैगाम जाएगा। हुकूमत KCR के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले असम्बली में इस पर फैसला लेने को तरजीह देगी। वाज़ेह है कि बरकी कमीशन और कालेश्वरम कमीशन का मुतालबा खुद BRS पार्टी ने किया था। हुकूमत भी इसी अंदाज में जवाब देने के लिए तैयारी करेगी। मानसून इजलास तलब करते हुए कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट को असम्बली में ज़ेर बहस लाकर सवाल खड़े करेगी। अवामी रुकुमात का बेजा इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए। असम्बली में मसले को ज़ेर बहस लाने से KCR को मज़ीद बदनाम करने के अलावा कमीशन की रिपोर्ट को अवाम के सामने रखने का पूरा मौका मिल जाएगा। असम्बली में इस मसले को ज़ेर बहस लाते हुए कि KCR पर कार्रवाई का फैसला असम्बली पर छोड़ा जाएगा ताकि कांग्रेस हुकूमत पर इंतकामी कार्रवाई का लेबल न लग सके। पीर को काबीनी इजलास में हुकूमत की जानिब से असम्बली मानसून सेशन अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में तलब करने का इम्कान है। हुकूमत का BRS के साथ BJP को निशाना बनाना काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और साथ ही BC तबके को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में BJP को निशाना बनाया जाएगा। बहरहाल हुकूमत पूरी हिकमत अमली के साथ कालेश्वरम के मामले में KCR को निशाना बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब को आसान न लें। जुबली हिल्स के पार्टी कारकुनों और कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि गोपीनाथ की अचानक मौत अफसोसनाक बात है जिस पर ज़िमनी इंतखाब का सामना है। इसमें पार्टी से मुकाबला करने वाले को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स में दौलतमंद अफराद बसते हैं। KTR ने कहा कि हैदराबाद में 1 लाख गरीब अफराद में जियो 58 और 59 के तहत पट्टा देने वाली KCR हुकूमत है। KTR ने कहा कि असम्बली इंतखाबात में हैदराबाद से कांग्रेस 1 सीट पर भी कामयाबी हासिल न कर सकी। कांग्रेस पार्टी ने हाइड्रा के जरिए गरीब आवाम को परेशान किया है। 20 माह की हुकूमत में कांग्रेस पार्टी ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 100 दिन में 6 गारंटियों पर अमल करने का दावा करके धोखा दिया। धोखा देने वाली कांग्रेस को अवाम सबक सिखाएं। హైదరాబాద్ మహానగరం ఇవాళ ఎంత విస్తరించింది, ఎన్ని ఫ్లైఓవర్లు, ఎన్ని అండర్ పాస్లు, ఎన్ని రకాల కొత్త లింక్ రోడ్లు ఇవన్నీ మనం వేసుకున్నాం. దానివల్ల ఇవాళ ఎంత కొత్తగా హైదరాబాద్ మహానగరం అద్భుతంగా తయారైంది 10 ఏళ్లలో. ఇది కూడా యాద్ చేయాలి. ఐటీ పరిశ్రమ ఎట్లా విస్తరించింది. 3 లక్షల మంది ఉండే ఐటీలో మన ప్రభుత్వం వచ్చినాడు. ఇవాళ 10 లక్షల మంది పిల్లగాళ్ళు పనిచేస్తానంటే 7 లక్షల మంది కొత్తగా పిల్లలు ఉద్యోగాలు చేస్తూ ఉన్నారు హైదరాబాద్లో. KCR ఇచ్చే లక్ష లగ్గమైపోయినాక వస్తున్నాయి పైసలు. నువ్వు పత్రిక పెట్టుకొని తులం బంగారం ఉన్నది పంపుతూనే ఉంటున్నా అన్నాడు. వచ్చినాయి వాళ్ళకన్నా తులం బంగారం? మరి బంగారం షాపులలో బంగారం లేదా? ఇక ముఖ్యమంత్రిని నమ్మేవాడు అప్పిత్తలేడైంది. ఎట్లా అయిపోయింది పరిస్థితి అంటే నేను చెప్పిన మీకు ఆ రోజే, తులం బంగారం కాదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఎంత లంగాలంటే రోల్డ్ గోల్డ్ కూడా ఇయ్యడు వీడని చెప్పిన నేను. అసలు గోల్డ్ కాదు, రోల్డ్ గోల్డ్ కూడా ఇయ్యడని చెప్పిన. నిజంగా కూడా ఇవ్వాలా, రోల్డ్ గోల్డ్ కాదు, వాడు ఇనుము ఇచ్చేటట్టు కూడా లేడు ఆఖరికి. అంటే ఎంత దుర్మార్గం అంటే ఇవాళ 20 నెలల పరిపాలన వచ్చి ఒక్క మంచి పని, ఒక్కటంటే ఒక మంచి పని చేసిన పరిస్థితి ఉన్నదా? 6 గ్యారంటీలు 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తామన్నారు. ముసలోళ్ళకు పెన్షన్లు అన్నారు, ఆడపిల్లలకు స్కూటీలు అన్నారు, లగ్గం చేసుకుంటే తులం బంగారం అన్నారు, ఒక్కొక్క మహిళకు 2500 అన్నారు. ఏడబోయినారు అయ్యా అంటే ఒకటే డైలాగ్ నేర్చుకున్నాడు. KCR అప్పులపాలు చేసిపోయిండు, నేనేం చేయాలి?
నేను ఒక్క మాట దయచేసి మిమ్మల్ని అందరినీ ఆలోచించమని అడుగుతున్నాను. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు కరోనా వచ్చింది. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस जनहिता पैदल दौरे पर बाज अखबारात मनमानी खबरें शाये कर रहे हैं। निजामाबाद में पार्टी कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में नए और पुराने कायदीन मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैदल दौरे के बारे में कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आला और दीगर कायदीन की मौजूदगी में कहा है। इस पैदल यात्रा को राहुल गांधी ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक खानदान की तरह है, इसमें इख्तलाफात ढूंढने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि पैदल यात्रा अवाम के करीब होने का बेहतरीन जरिया है। इख्तिदार में रहें या न रहें, अवाम में रहने की हिदायत दी गई है। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि बंकाचरला मामले में हरीश राव झूठ बोल रहे हैं। बीआरएस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा कि आरमूर में कांग्रेस की पैदल यात्रा में अवाम ने शिरकत नहीं की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पैदल यात्रा में रकम तकसीम करने पर आरमूर की अवाम नहीं आई। उन्होंने कहा कि डम्मी वजीर आला रेवंत रेड्डी जुबली हिल्स में हैं, शैडो वजीर आला पैदल यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि असल में जनहिता पैदल दौरा किस लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अवामी हुकूमत नहीं, अवाम से बदला लेने वाली हुकूमत चल रही है। आरमूर में बगैर ऐलान करदा इमरजेंसी दिखाई दे रही है। उनके खिलाफ 40 केसेस दर्ज किए गए। उनकी वालिदा पर मुकदमा दर्ज किया गया। पीसीसी सदर ने केटीआर पर जहर उगला है। उन्होंने कहा कि हर वजीर की पेशी में बदउनवानी चल रही है। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि केसीआर के दुश्मन ही बीआरएस को खत्म करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी और राधा कृष्ण कविता के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, कविता भी वही अल्फाज का इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी की नाकामी और कामयाबी से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में पार्टी होती है। अगर कोई शख्सी तौर पर कुछ करने का दावा करते हैं तो उनका वहम है। वो एक पार्टी के कारकुन की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने केसीआर से कई बार मुलाकात की है, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं हुई। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि केसीआर नहीं है तो कोई भी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि हमारी रियासत के हुकूक का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपकी रियासत के हुकूक का आप तहफ़्फ़ुज़ करें, अवाम को गुमराह करने वाले गलत इतलात फराहम न करें। आंध्रा के वजीर लोकेश की बयान पर तबसरा करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा कि पानी की तकसीम के बारे में मालूमात नहीं है, लोकेश गैर ज़रूरी बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी रियासत के हुकूक के बारे में हम बराबर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि पानी के मामले में दोनों रियासतों के दरमियान माजी के हालात पैदा करना अच्छी बात नहीं है। ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మంత్రి లోకేష్ గారు బన్కచర్ల మీద మేమేదో వరద నీళ్ళు తీసుకుపోతుంటే ఎందుకు ప్రాంతీయ తత్వాన్ని రెచ్చగొట్టమని అడుగుతా ఉన్నాను. నేను అడుగుతా ఉన్నా, నికర జలాలు, మిగులు జలాలు, వరద జలాల గురించి కొంత ముందు తెలుసుకోండి. తెలంగాణకు ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి నీటి లభ్యత దృష్ట్యా 968 టీఎంసీలు తెలంగాణకు, 531 టీఎంసీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ నికర జలాల మీదుగా మిగులు జలాలతో తీసుకున్న తర్వాత వరద జలాల గురించి ఆలోచించాలి. వరద జలాల లభ్యత, ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ పైన ఉండబడేటువంటి ప్రాజెక్టులు, ఆ నీటి వినియోగం పూర్తి అయిన తర్వాత వరద జలాల లెక్కకు వస్తుంది. అది తెలియకుండా ప్రజలను మభ్యపెట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలను మోసం చేసే విధంగా ప్రయత్నం జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి. తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించిన హక్కు ఆనాడు ట్రిబ్యునల్స్, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు నిర్ణయం చేసిన ప్రకారంగా बीआरएस की रुकन काउंसिल के कविता ने पीर की सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया है। कविता का कहना है कि ओबीसी के लिए 42% रिजर्वेशन मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां झूठ बोल रही हैं। कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान ओबीसी के लिए 42% रिजर्वेशन का वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। बीजेपी का कहना है कि उनकी पार्टी के रिजर्वेशन के लिए ताईद मुसलमानों को शामिल न करने से मशरूत होगी, यानी बीजेपी
उस वक्त ओबीसी रिजर्वेशन की तायीद करेगी जब इस जुमरे में से मुसलमानों को शामिल न किया जाए। उधर कांग्रेस ने भी अब तक वाज़ेह नहीं किया है कि वो मुसलमानों को 42% रिजर्वेशन बिल में शामिल किया जाएगा या नहीं। कविता का दावा है कि इन दो कौमी जमातों के इस झूठ को बेनकाब करने के लिए उन्होंने पीर की सुबह 10 बजे से 72 घंटों की भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। कविता की भूख हड़ताल 7 अगस्त को सुबह 10 बजे खत्म होगी। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत ने उन्हें भूख हड़ताल की इजाजत नहीं दी है, इसलिए हमने इस मामले को हाई कोर्ट से रुजू किया है। సాధించాలనుకునేటటువంటి విషయం ఒక్కటే, కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పష్టతనివ్వాలి. మీరు ఇచ్చినటువంటి 42% ఆర్డినెన్స్ లో ముస్లిమ్స్ ఉన్నారా లేదా, మరి ముస్లిమ్స్ లేకపోతే ముస్లిం రిజర్వేషన్ గురించి మీరు ఏం చేయబోతా ఉన్నారు. రెండు, భారతీయ జనతా పార్టీ ఆర్డినెన్స్ అనేటటువంటిది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్, ఆ రైట్ ని మీరు ఎట్లా వయలేట్ చేస్తారు, ఎందుకు గవర్నర్ గారు ఇంకా సంతకం పెడతలేరు, రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర బిల్లు పెండింగ్ ఉన్నది, ఆ బిల్లు విషయంలో ఎందుకు రేవంత్ రెడ్డి గారు సుప్రీంకోర్టుకు పోవడం లేదు, మరి రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పిండ్రు మేము బీసీలకు హక్కులు ఇస్తామని చెప్పే మీరు ఎందుకు ముందడుగేస్తలేరు అనేటటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం రావడం కోసమే ఈ దీక్షను చేపట్టడం జరిగిందని కూడా ఈ సందర్భంగా మేము తెలియజేస్తా ఉన్నాము. రెండు, మీరు కాంగ్రెస్ వాళ్ళందరూ అక్కడికి పోతే, లాస్ట్ టైం అయితే కనీసం రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా రాలేదు, ఈసారి అన్న కనీసం ఆయన వస్తాడా రాదా చెప్పండి. ఆయన రాకపోతే అసలు మరి ఆయన బీసీలను, తెలంగాణ బీసీలను అవమానించినట్టుగానే భావించాల్సి వస్తుంది. మూడో అంశం, మీరు వెళ్తే ముఖ్యమంత్రి హోదాలో మీరు వెళ్తే మీరు మీ పెద్ద నాయకులు పార్లమెంట్లో మాట్లాడాలి. ఇంతవరకు ఒక్క గాంధీ కూడా, రాహుల్ గాంధీ గారు కానీ, ప్రియాంక గాంధీ గారు, సోనియా గాంధీ గారు, ఒక్క గాంధీ కూడా పార్లమెంట్లో తెలంగాణ బీసీల గురించి మాట్లాడలేదు. वजीर इमारात व शवारिक कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि एलबी नगर ता अंबरपेट 650 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड कॉरिडोर तामीर किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने वनस्तीपुरम जंक्शन के पास ज़र इल्तिवा कामों का जायजा लिया। उनके हमराह कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर कोमटी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद ता विजयवाड़ा 2 घंटे के अंदर सफर को यकीनी बनाने के लिए ग्रीन फील्ड रोड तामीर की जाएगी। इस मामले में मरकजी वजीर नितिन गडकरी से 6 अगस्त को मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल में बीआरएस हुकूमत ने कोई तरक्की नहीं की। उन्होंने सुनहरे तेलंगाना के नाम पर रियासत को मखरूस तेलंगाना बना दिया। कोमटी रेड्डी ने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में कविता का क्या लेना देना, 10 साल से आखिर वो क्यों खामोश थीं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन पीर के दिन पार्टी कारकुनों के साथ ट्रेन के जरिए दिल्ली का सफर करेंगी। सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़ ने बताया कि पीर के दिन सुबह 9 बजे चरलापल्ली रेलवे स्टेशन से वो रवाना होंगी। 5, 6 और 7 अगस्त को बीसी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने वाले प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। इतवार के दिन निज़ामाबाद जिले के अंकापुर में मुकामी ख़वातीन के साथ मीनाक्षी नटराजन ने बदकम्मा खेला। महात्मा गांधी बस स्टेशन इमली बंद से चंद्रायन गुट्टा मेट्रो रेल के लिए तेजी के साथ काम जारी है। इस रूट पर नए तरीके से इंजीनियरिंग डिजाइन के सबब जहां 1100 प्रॉपर्टीज को हासिल करने की निशानदही की गई, अब इसमें कमी करके सिर्फ 900 प्रॉपर्टीज को ही हासिल किया जाएगा। इस तरह नए इंजीनियरिंग डिजाइन की वजह से 200 प्रॉपर्टीज मुनहदिम होने से बच जाएंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रो एनवीएस रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि इस रूट पर मेट्रो लाने के लिए हर दिन ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास लिया जा रहा है। ताहाल 412 प्रॉपर्टीज को हासिल करके 360 करोड़ रुपए का मुआवजा अदा किया गया और 380 प्रॉपर्टीज को मुनहदिम किया गया। इन्हदामी कार्रवाई और मलबा उठाने का काम और तेजी के साथ जारी है ताकि आम लोगों को तकलीफ न हो। मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि चूंकि ये रूट गुंजान शहरी आबादी पर मुश्तमिल है, इसलिए काफ़ी मोहतात तरीके से प्रॉपर्टीज़ के हुसूल इन्हदामी अमल को किया जा रहा है। इसके अलावा पीने के पानी की पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, मोरियों और हेड इलेक्ट्रिकल वायर, उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक और हेड इलेक्ट्रिकल लाइनों को ज़ेर ज़मीन केबल में बदला जा रहा है। आबरसानी और दीगर बलदी सहूलतों को बर वक्त जोड़ा जा रहा है। मेट्रो पिलर्स की निशानदही, इसके लिए ज़मीन की पुख्तगी का जांच का अमल शुरू किया जा रहा है। जहां मेट्रो स्टेशन होंगे उसके पिलर्स की मार्किंग और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जायज़ा लिया जा रहा है। मेट्रो के ओहदेदार बलदी सहूलतों से मुताल्लिक़ हुकूमत के दीगर ओहदेदारों के साथ तालमेल बनाए हुए हैं।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के ज़र एहतमाम 11 और 12 रबीउल अव्वल को दारुस्सलाम हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले 2 रोज़ा जश्न मीलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तश्कील दी गई इस्तक़बालिया कमेटी का इजलास सदर इस्तक़बालिया कमेटी और रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज की सदारत में मुनक्किद हुआ। दारुस्सलाम में मुनक्किदा इस इजलास में इस्तक़बालिया कमेटी के अरकान के अलावा मजलिस की इब्तदाई सदूर व मोतमदीन और पार्टी के सीनियर अरकान ने भी शिरकत की। मोतमद इस्तक़बालिया कमेटी मोतमद उमूमी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने अब तक हुए इजलासों की रोदात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने कहा कि इस मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का 1500वां जश्न होगा। इसकी अहमियत के मुताबिक इसको शायान शान तौर पर मनाने कोई कसर न छोड़ी जाए। इजलास में इंतज़ामात और मालिया व दीगर उमूर पर मुबाहिस हुए और बशमूल अरकान मुक़न्नना चारमीनार ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हॉकर्स को हिरासत करके उनके साजो सामान को जब्त किया गया। हॉकर्स ने इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करके शिकायत की, जिस पर सदर मजलिस ने इस काम के लिए रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली और रुकन बलदिया पत्थरगट्टी सुहेल कादरी को मसाइल की एकसुई के लिए रवाना किया। मीर जुल्फ़िकार अली ने ट्रैफिक पुलिस चारमीनार के अहदेदारों से मुलाकात करके तफसीलात हासिल की, जिस पर उन्हें बताया गया कि गैरकानूनी तौर से कारोबार करने वाले हॉकर्स की वजह से सयाहों और अहदेदारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि एसीपी चारमीनार पुलिस ने बताया कि डीसीपी साउथ जोन की हिदायत पर हॉकर्स का सामान जब्त किया गया। मीर जुल्फ़िकार अली ने पुलिस से मुतालबा किया कि वो पुराने हॉकर्स के सामान को उनके हवाले करें। उन्होंने एक जायज़ा इजलास में मसले का मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा किया। पुलिस ने हॉकर्स को इंतबाह दिया कि वो दोबारा वहां गैरकानूनी तौर से अपना कारोबार न करें। मीर जुल्फ़िकार अली ने बताया कि वो सदर मजलिस को इस मामले से वाकिफ़ करवा कर मसाइल की मुस्तकिल तौर पर एकसुई करेंगे। जबकि हॉकर्स का कहना है कि पुलिस उनके खिलाफ 500 रुपये का चालान कर रही है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस केस दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश करेगी। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के इलाके गौस नगर में खुले नाले पर स्लैब डाला गया। इस सिलसिले में मक्कीनों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से शिकायत की थी, जिस पर सदर मजलिस ने जोनल कमिश्नर से बात करके नाले पर स्लैब डालने के लिए नुमाइंदगी की थी। मुकामी रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि नाले में बारिश का पानी उबल कर सड़क पर बह रहा है, जिससे मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जिस पर सदर मजलिस ने इस काम के लिए रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन को इक़दामात करने के लिए कहा था और इतवार को इस मसले का मुस्तकिल हल हो गया है। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इलाके अलकापुर डॉलर हिल्स कॉलोनी में रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने पैदल दौरा किया। दौरे में कॉलोनी के जिम्मेदारों ने रहमत बेग को बताया कि उन्हें सीवरेज लाइन और पीने के पानी के मसाइल दरपेश हैं। इस सिलसिले में कॉलोनी में एक ग्रुप मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें अवामी मसाइल की एकसुई का रहमत बेग ने तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर व मोतमदीन मौजूद थे। गाजीपेट में हज़रत सैयद शाह अफजल बियाबानी की सालाना उर्स तकारीब के लिए ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इंतजामात किए जाएंगे। ये तकारीब 20 ता 22 अगस्त मुनक्किद होंगी, जिसमें मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शिरकत करती है। कमिश्नर ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चाहत बाजपाई ने दरगाह शरीफ के अहाते का दौरा किया और यहाँ ज़ायरीन के लिए बेहतर से बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए कामों का आगाज़ किया। दरगाह के सजाद नशीन रियासती हज कमेटी के सदर नशीन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा के फर्जंद सैयद शाह मोहम्मद बख्तियार बियाबानी ने कमिश्नर बलदिया के हमराह आए दीगर सरकारी ओहदेदारों को दरगाह और इसके इलाके का मुआयना कराया और ज़ायरीन की सहूलतों के लिए किए जाने वाले कामों की निशानदही करवाई। बालापुर पुलिस स्टेशन के तहत वादी सालहीन शाहीन नगर में एक सेक्स रैकेट का पता चला है। एक इतला पर पुलिस ने शब 4 बजे एक मकान पर धावा करके 5 लड़कियों को आज़ाद करवाया। इस मकान में गुज़िश्ता चंद माह से फहाशी का अड्डा चलाया जा रहा था। पुलिस ने बाबानगर के रहने वाले 51 साला ऑर्गेनाइजर अब्दुल वहाब और 2 गाहकों को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इंस्पेक्टर एम सुधाकर ने बताया कि लड़कियों को बाज़ाबादकारी मरकज़ भेज दिया गया है
ऑर्गेनाइजर चंद माह से इस इलाके में एक मकान किराए पर लेकर यहां लड़कियों को लाकर फहाशी करवा रहा था। ये लड़कियां गैर मुकामी बताई जाती हैं। फहाशी के इस अड्डे की पुलिस को एक मखबर ने निशानदही करवाई। चादरघाट पुलिस की मुबैना लापरवाही एक नौजवान की मौत का सबब बनी। मलकपेट कदीम पानी की टांकी के एक शख्स ने जो प्याज फरोख्त करते हैं बताया कि उनके 29 साला फर्जंद मोहम्मद सिराज पेशे से पेंटर हैं, जिनका काचीगुड़ा में ससुराल है और वो घर दामाद थे। कल शब अपने वालिदैन से मुलाकात के लिए मलकपेट आए, तब उनके ससुराली रिश्तेदारों ने उनके यहाँ आने पर एतराज़ करते हुए ये कहते हुए उन्हें साथ ले गए कि उनको ख़त्म कर देंगे। इस धमकी पर परेशान उनके वालिदैन उसी शब चादरघाट पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपने लड़के को उनके ससुराली रिश्तेदारों की जानिब से धमका कर ले जाने की शिकायत की। पुलिस ने उन्हें बताया कि तल्ख कलामी के दौरान इस तरह की धमकियां दी जाती हैं। पुलिस ने उन्हें मशवरा दिया कि वो घबराएं नहीं, खाना खाएं और सुकून से सो जाएं। सुबह तक भी लड़के की खैरियत की इतला न मिलने पर लड़के के वालिदैन उनके ससुराली घर काचीगुड़ा पहुंचे और घर पर कुफल देखकर परेशान हो गए और दोबारा चादरघाट पुलिस स्टेशन आए और सारा वाकया बयान किया। तब पुलिस ने एक तस्वीर दिखाई कि आया ये आपका लड़का है। उसके वालिदैन ने कहा कि हाँ, यही उनका लड़का है। पुलिस ने कहा कि काचीगुड़ा के इलाके की रेलवे पटरियों पर उसकी नाश मिली है। पुलिस ने मुश्तबा मौत का केस दर्ज किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर मख्तूल का पोस्टमार्टम करवाकर नाश विरसे के हवाले की गई। मख्तूल के खानदान वालों ने पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। भोनगिर शहर के जगदेवपुरा चौराहे के पास एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक सरोराम हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला रमेश कृष्णा और उनके भाई शिवम मुदिराज दोनों भोनगिर टाउन में फूल और फल की खरीदारी के लिए आए हुए थे। खरीदारी के दौरान जगदेवपुरा चौराहे के पास उन्हें लॉरी ने टक्कर दे दी, जिसके बाइस रमेश कृष्णा और उनके भाई मुकाम हादसे पर हलाक हो गए। पुलिस ने लॉरी ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया है। केस दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही हैं। महकमे आबकारी की टास्क फोर्स ने किटल्ला पर मोइनाबाद में वाक़ एक फार्म हाउस पर धावा करते हुए एक रेव पार्टी को बेनकाब किया है, जहां मुनशियात व दीगर मशगूलात का इस्तेमाल किया जा रहा था। वीकेंड पर चंद IT प्रोफेशनल ने इसका एहतमाम किया था। धावे के दौरान नशावर, LSD, गांजा, शराब और दीगर ममनुआ ड्रग्स दस्तयाब हुई। टास्क फोर्स के इस धावे में 6 IT प्रोफेशनल्स को हिरासत में लिया गया है और उन्हें मोइनाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस रेव पार्टी में लड़कियां भी मौजूद थीं। चिंतल बस्ती के इलाके वीरनगर में एक मकान में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मकान में अचानक आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। मालिक मकान ने बताया कि मजलिस के एक कारकुन ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया और फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। मकान मालिक ने इजहार अफसोस करते हुए बताया कि इस वाक़े में उनके बच्चों के सर्टिफिकेट्स भी जलकर खाकस्तर हो गए। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहकीकात जारी है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने की आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कालेश्वरम कमीशन रिपोर्ट पर पीर को काबीना इजलास में होगी बहस। मजालिस मुकामी इंतखाबात और मानसून इजलास पर लिया जाएगा फैसला। कांग्रेस पार्टी एक खानदान की तरह है, नए और पुराने कायदीन में कोई फर्क नहीं, महेश कुमार गौड़ का खिताब। ओल्ड सिटी मेट्रो के काम में तेजी, रात देर गए इन्हदामी कार्रवाई। नए डिजाइन के सबब 200 प्रॉपर्टीज महफूज, हर दिन जायजा इजलास। बालापुर में फहाशी का अड्डा बेनकाब, 5 लड़कियों को आजाद करा लिया गया। ऑर्गेनाइजर और 2 गाहक गिरफ्तार। मोइनाबाद फार्म हाउस पर पुलिस का धावा, गांजा, शराब और ममनुआ ड्रग्स जब्त। 6 IT प्रोफेशनल हिरासत में। और चादरघाट पुलिस की मुबैना लापरवाही, एक नौजवान की मौत। रेलवे ट्रैक पर नाश दस्तयाब। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफ़िज़।